आज हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल्स की जो चाहिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली एक सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लिखना चाहें तो हैमिल्टनियन दैट इज ऑपरेटर एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। एच ये एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर है जिसको अगर साई पे हम ऑपरेट करेंगे तो हमें ई मिलेगा, एनर्जी वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू दैट इज द आइगन वैल्यू, और साई मेरा वेव फंक्शन होगा। एच साई इज इक्वल्स टू ई साई दिस इज व्हाट इज द श्रोडिंगर। फॉर डिफरेंट फंक्शंस आई कैन राइट हैमिल्टनियन ऑपरेटर इन डिफरेंट वे। सो p square by 2m that will be my kinetic energy plus v will be my potential energy. So this psi is equals to E psi. Potential operator is minus h cross over I d over dx. So it will be minus h by 2m d square by dx del square in 3 dimension plus v psi is equals to E psi. This is what the Schrodinger equation is. So ideally it is a three-dimensional ideally it is a linear equation of second order. Now we want to discuss what is a vector space. Vector space consists of two components basically. One are the vectors that may be denoted by say phi, psi, chi, that denotes my wave function component, and another is scalar like the a, b, c and so on. It must have a rule for addition, it must have a rule for multiplication. Now moving on to the rule for the addition part. So addition part, for addition rule, now addition operator is plus sign. So this must form an abelian group. So the characteristic of abelian group, जो भी जिनको abelian group के बारे में जानकारी नहीं है उनको हम बता दें कि अगर phi और chi सपोज मेरे दो वेक्टर्स हैं जो इस वेक्टर स्पेस में बिलोंग करते हैं, then phi plus chi the result of this addition operation will ये भी उसी वेक्टर स्पेस में बिलोंग करेगा। नंबर 2, the addition operator is commutative in nature. तो phi plus chi will be equal to chi plus phi. This will be associative in nature. Phi plus chi bracket closed plus psi is equals to phi plus bracket open chi plus psi. Existence of a null vector should be there. If I add null vector into anything, it should be that thing only. And existence of an inverse, if I add it to anything, it will give me a zero quantity. So this forms addition rule. Under addition, my linear vector space will form an abelian group. Now come to the multiplication thing. Multiplication, since मैंने आपको पहले ही बताया है कि वेक्टर स्पेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। अगर किसी स्केलर का किसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, देन आई विल गेट अ वेक्टर, एंड दैट वेक्टर, वो वेक्टर उस वेक्टर स्पेस का पार्ट होना चाहिए, और ऐसे ही किसी दूसरे वेक्टर के साथ होना चाहिए। और फिर दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर स्पेस होगा वो उस रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो उस वेक्टर स्पेस का पार्ट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए, व्हेन आई स्केलर, दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर psi plus phi will get a psi plus a phi. It gets distributes. A plus b psi, this is a sum of a scalar and multiplied by a vector, it will also get distributed. So, and multiplication is also associative in nature. If two scalars are there, one vector a b psi is equals to a b psi, and existence of a null vector should be there. Null vector multiplied by psi will give me a null vector, and an identity vector should be there, and identity vector is psi. Identity vector dot psi should give me the vector itself. Now coming on to the Hilbert space. Hilbert space is basically एक लीनियर वेक्टर स्पेस है, जो अभी तक हम बोला था जिन चीज़ों के बारे में, ये सारी की सारी एक लीनियर वेक्टर स्पेस थे। तो इसी तरीके के लीनियर वेक्टर स्पेस एक
हिल्बर्ट वेक्टर स्पेस है। इसमें जो ऑपरेटर्स होंगे वो लीनियर इन कैरेक्टर्स होंगे। फाई काय साई ए बी सी दो कंपोनेंट्स होंगे। तो इसमें जो साई फाई है उसको फाई साई के कॉन्जुगेट के रूप में लिखा सकता है। साई फाई can is written as phi psi. Now what is this? This is the scalar product of psi with phi. So जब हम इसे लिखते हैं इंटीग्रल की फॉर्म में तो पहली चीज का कॉन्जुगेट करते हैं, दूसरी चीज जैसी की तैसी एंड वी इंटीग्रेटेड। दिस इज व्हाट द स्केलर प्रोडक्ट वी कॉल। नाउ if this is the scalar product, I can also write simply take it outside psi phi 1 plus b psi phi 2. Then this quantity should always be greater than or equal to 0. ये जीरो तभी होगी जब साई जीरो के बराबर होगा। साई जीरो के बराबर होने का मतलब है मॉड साई स्क्वायर विल इक्वल टू जीरो। मॉड साई स्क्वायर इक्वल टू जीरो का होने का मतलब है कि पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो एंड इट मेक्स नो सेंस स्टडिंग दोज थिंग्स, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग केस आएगा वो आएगा साई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो दूसरी चीज निकल के आई, एक तो है कंप्लीटनेस एक्सियोम। जो हिल्बर्ट स्पेस है तो ये मेरा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। दो हिल्बर्ट स्पेस है वो मेरा सेपरेबल होगा। मेरा एक कॉची सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी साई एन बिलोंग्स टू एच, एन इज इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन, सच दैट फॉर एवरी साई एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एट लीस्ट एग्जिट्स वन सीक्वेंस साई एन फॉर विच mod psi minus psi n is less than epsilon. So हिल्बर्ट स्पेस सेपरेबल होगा, उसके हर एलिमेंट को आप सेपरेट करके देख सकते हैं। नंबर 2 थिंग, H जो है कंप्लीट है फॉर एवरी कॉची सीक्वेंस psi n belongs to H converges to an element of H. तो हर कॉची सीक्वेंस, अगर आप कोई भी कॉची सीक्वेंस लेंगे हिल्बर्ट स्पेस में तो वो एक फाइनाइट लिमिट जो है की तरफ कन्वर्ज होगा, और वो जो कन्वर्जिंग लिमिट होगी वो खुद हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट करेगी। दिस इज द कंप्लीटनेस एक्सियोम। नाउ कमिंग टू द डायमेंशंस एंड बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं जब मेरी मेरी सॉल्यूशन if I is equals to 1 to n, ai phi I is equals to 1, that is I have an n dimension equation a1 phi 1 plus a2 phi 2 plus a3 phi 3 plus a4 phi 4 is equals to 0 a and phi n. All the vectors a and phi n are a1 phi 1 phi 2 phi 3 up to phi n are independent if and only if the solution of the equation is phi 1 a1 equal to a2 equal to a3 equal to an equal to 0. अगर मेरा कोई भी स्केलर का सेट एग्जिस्ट करता है कि सारे जीरो नहीं हैं, तो मेरे सारे वेक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उनको किसी रिड्यूस्ड नंबर ऑफ टर्म्स के वेक्टर्स के टर्म्स में मैं किसी भी वेक्टर्स को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकता हूं। फाई इज इक्वल्स टू किसी भी वेक्टर को i इज इक्वल्स टू 1 टू n ए आई फाई आई। तो जो सेट फाई आई है वो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस ली। 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में किसी भी वेक्टर को मैं x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट 3x प्लस 3y प्लस 4y प्लस 2z फॉर एग्जांपल, किसी भी वेक्टर को उठा लीजिए 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस को मैं यूक्लिडियन स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में मैं लिख सकता हूं। तो मेरे को 3 कंपोनेंट चाहिए, तो मेरा n इक्वल टू वहां पे 3 हो गया। तो basis of a vector consists of a set of maximum possible number of linearly independent vectors belonging to that space. तो basis मेरी यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस के केस में कितनी हुई, 3 डायमेंशनल हुई।
अगर मैं अपना मिन्कोस्किस 4 डायमेंशनल वर्ल्ड की बात करूंगा तो मेरी बेसिस हो जाएगी 4 डायमेंशनल। तो रियल वर्ल्ड की जब तक हम बात करेंगे तब तक मेरी बेसिस रहेगी 3 डायमेंशनल, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, कई जगह पे बात आती है फेज स्पेस की। तो फेज स्पेस बेसिकली 6 डायमेंशनल होता है, उसमें 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो जो फाई आई है, फाई 1, फाई 2, फाई n, इसको फाई आई मान लीजिए, जो भी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं उसको मैं बेसिस कहूंगा, और जो उनकी आगे न्यूमरल्स लगे होंगे किसी वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसको मैं कंपोनेंट्स कहूंगा। जो ऐसे मेरे आई जे के होते थे वो मेरे बेसिस हैं, बेसिस वेक्टर्स हैं। और जो उसके आगे लगते थे 3i 2j 4k किसी वेक्टर्स के लिए, तो 3 2 4 ये मेरे कंपोनेंट्स हो गए। यूक्लिडियन 3 डायमेंशनल स्पेस में इसे आसानी से समझा जा सकता है। सो ईच कंपोनेंट इज गिवन बाय द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विथ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। अगर मेरे को कोई कंपोनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उस कंपोनेंट का संपूर्ण वेक्टर के साथ में एक स्केलर प्रोडक्ट ले लूंगा तो मेरे को वो कंपोनेंट मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। मैंने वो कंपोनेंट लिया, जैसे अगर मेरे को 3i प्लस 2j प्लस 4k, इसमें j का कंपोनेंट निकालना है तो मैं क्या करता था, j के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता था, j डॉट j, तो मेरा 2 कंपोनेंट आ गया। वही हम यहां कर रहे हैं, केवल थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा ज्यादा इंट्रिकेट हो गया है, तो हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। यहां भी हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और यहां भी हम स्केलर प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मोर इन्वॉल्व मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट इज लीनियर वेक्टर स्पेस, जो कि n डायमेंशनल है, ठीक है। तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। अब तीसरी चीज आई साई फाई। अब इसको मैं लिखूंगा तो पहला हर समय कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखिए इंटीग्रल फॉर्म में, फाई एक्स dx। अब ये एज यू वांट द वेव फंक्शन टू पोजेस अ स्केलर प्रोडक्ट, वी मस्ट सेलेक्ट, केवल वही फंक्शन सेलेक्ट किए जाएंगे जिनके लिए ये फंक्शन जो है फाइनाइट हो, ठीक है। और वेव फंक्शन केवल वही हो सकता है जिसके लिए अपने से किया गया स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज साई स्टार साई और मॉड साई एक्स, ये चीज फाइनाइट हो, ये इंटीग्रल डाइवर्ज ना करे। अगर ये इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो वो फंक्शन मेरा वेव फंक्शन नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विद साई इटसेल्फ शुड बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। अगर वो फाइनाइट नहीं होती है, अगर वो डाइवर्ज करती है, तो मेरा फंक्शन वेव फंक्शन नहीं हो सकता। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, उसकी कोई साई एक्स स्क्वायर की फाइनाइट लिमिट आनी चाहिए। अब दूसरी चीज मैक्स बॉर्न ने इंटरप्रेट किया कि जो साई एक्स है, अगर मैं उसे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक इंटरप्रेट dx 1 डायमेंशन की बात करें, हम 3 डायमेंशन में भी नहीं जा रहे हैं, विल गिव यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमें प्रोबेबिलिटी देगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हर समय क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, पार्टिकल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं तो है ही पक्का, तो ये वैल्यू हर समय होगी 1। इसको, इस प्रोसेस को हम कहेंगे नॉर्मलाइजेशन। और अगर कोई वेक्टर ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है तो उसे कहेंगे नॉर्मल वेक्टर।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आया तो जो फिजिकल स्टेट थी सिस्टम की क्वांटम मैकेनिक्स में, वो हमने हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट से चूज करी है। इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं स्टेट वेक्टर्स। हमारी खासियत ये है स्टेट वेक्टर्स चुनने की कि हमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होने से we can represent the state vectors in different bases by means of function expansion. This is analogous to specifying the equilibrium vector by means of components. The meaning of a vector is of course independent of coordinate system chosen to represent its components. तो मीनिंग जो है स्टेट वेक्टर्स का, जो भी वेव फंक्शन निकालेंगे वो चेंज नहीं हुआ। उसका आपका कार्टेशियन में पोलर में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, नो डाउट, लेकिन आपका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब आया टू फ्री स्टेट वेक्टर्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट मीनिंग। डिराक ने जो नोटेशन यूज करी दैट वाज वंडरफुल। तो उन्होंने क्या किया, इन वेक्टर्स को Dirac introduced to become an invaluable notation in quantum mechanics. He noticed the state vector by he called a cat. So what Dirac did, Dirac ने क्या किया, ब्रैकेट वर्ड लिया and he treated it as a sandwich of bra and cat, with C as something like a आलू टिक्की। C एक तरीके से आलू टिक्की थी और ब्रा एंड कैट दो ब्रेड्स थे। तो उन्होंने कैट को लिया लाइक अ वेव फंक्शन साई, एंड इसका जो कॉन्जुगेट था साई स्टार वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्रा। एंड इफ यू वांटेड टू राइट, अगर आपको इसका स्केलर प्रोडक्ट निकला था फाई साई, देन यू कैन इजीली राइट, तो इसका कंजुगेट लेते हैं पहली टर्म का, तो ये ब्रा आएगा साई। दिस इज एज इजी एज इट सीम्स। सो मेरा ये नोटेशन बहुत, इसकी नोटेशन फॉर एवरी कैट, तो खासियत ये थी फॉर एवरी कैट देयर एग्जिस्ट अ ब्रा एंड फॉर एवरी ब्रा देयर विल बी अ कैट एंड वाइस वर्सा। सो मेरी दो स्पेस हुई, एक हुई मेरी हिल्बर्ट स्पेस और मेरी एक कंजुगेट हिल्बर्ट स्पेस हुई एच स्टार। अगर मेरा हिल्बर्ट स्पेस में एक साई कैट है तो उसके कंजुगेट हिल्बर्ट स्पेस में मेरा ब्रा जरूर प्रेजेंट होगा। अगर मेरा कंजुगेट हिल्बर्ट स्पेस में ब्रा प्रेजेंट है तो उसके लिए हिल्बर्ट स्पेस में मेरा एक कैट जरूर प्रेजेंट होगा। तो फॉर एवरी कैट हैज अ करस्पॉन्डिंग ब्रा एंड एवरी ब्रा हैज अ करस्पॉन्डिंग कैट। सो इसका कुछ सिंपल था, जैसे अगर हम किसी ब्रा कैट को कंजुगेट करेंगे तो हमें उसका करस्पॉन्डिंग ब्रा मिल जाएगा। अगर हम कोई स्केलर क्वांटिटी साथ में है उसके साथ में कॉन्जुगेट करेंगे, देन माय स्केलर क्वांटिटी विल टर्न एज अ complex conjugate and my cat will turn into a bra, right? Now if suppose complex quantity is inside this cat, scalar is inside the cat, then it will come out as such outside this cat. I can easily write a psi cat. If it is inside a bra, suppose, then what I have to take? I have to take it outside by taking the complex conjugate, because this involves the complex conjugate thing. So it will become, ये बन जाएगा a स्टार psi। तो जो ब्रा था वो कैट का ब्रा वेक्टर था, वो कैट का कंजुगेट था, कैट कंजुगेट का ब्रा था। अगर मेरी एक हिल्बर्ट स्पेस H है और उसकी कंजुगेट हिल्बर्ट स्पेस मेरी H स्टार है, तो अगर मेरी हिल्बर्ट स्पेस में कोई कैट है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट में 100% उसके लिए कोई ब्रा जरूर होगा। इसी हिसाब से अगर मेरी कंजुगेट हिल्बर्ट स्पेस में मेरे पास कोई ब्रा है तो उसके लिए हिल्बर्ट स्पेस में मेरे पास कैट जरूर होगा। जैसे आपकी मूवी में किसी फिल्म में डायलॉग है, हर लड़के के लिए कोई हर लड़की बनाएगी, इस तरह का कोई डायलॉग है, उसी तरीके से सेम थिंग वर्क्स हियर ऑल्सो, दैट फॉर एच स्टार
For every bra there will be a cat, for every cat there will be bra, and all those things. Now phi psi star is equals to psi phi. Now what we have done here, if we are, अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में ब्रा कैट में चेंज हो जाएगा, कैट ब्रा में चेंज हो जाएगा. तो सिंपल साई, ये मेरा कैट था, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, ब्रा में चेंज हो गया, और ब्रा मेरा कैट में चेंज हो गया. नाउ अगर मैं इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखूंगा तो ये ज़्यादा आपको क्लियर लगेगा. फाई साई स्टार सपोज मैं निकाल के दिखाता हूं आपको. तो हमने लिखा इसे इंटीग्रल फॉर्म में, तो फाई स्टार हो जाएगा साई डी क्यूब आर स्टार. दैट मीन्स आई एम टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. तो फाई स्टार का स्टार, स्टार विल गो ऑन फाई एंड साई स्टार डी क्यूब आर. This I can easily write now psi phi. Now if I am having, अब मैं स्केलर प्रोडक्ट लेना चाहता हूं, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज डिस्कवर करना चाहता हूं. a1 psi 1 plus a2 psi 2. But why, what I have told you, if a cat is, scalar is inside the cat, scalar will come outside this cat vector without getting conjugated, as such it will come out. So I can easily write a1 psi 1 plus a2 psi 2, and then a1 psi 1 plus a2 psi 2 psi. If I want to do this, then what will happen? This will get complex conjugated because it is inside a bra. So a1 star psi 1 psi plus a2 star psi 2 psi. So we can combine these two things to get the other results. So norm of a vector will be real and a positive quantity. Norm will never be a negative quantity. Norm is psi. This will be my norm. So norm of a vector will be for any state vector h, this cat, this will be called as my norm. Scalar product with itself will be called as norm. So it will be 0 when psi will be equal to 0. This, ये कोई सेंस मेक नहीं करेगा. जब मेरा वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा तो मैं किस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ? तो मैं किसी चीज़ को स्टडी ही नहीं कर रहा हूँ, तो दैट विल मेक नो सेंस. सो सेंस मेरी तब बनेगी व्हेन psi इक्वल टू 1. नेक्स्ट थिंग जो निकल के आए, ये मेरा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा. नेक्स्ट थिंग जो निकल के आएगी वो होगी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी मेरी कहेगी, अगर मेरे दो स्टेट्स हैं फाई और साई, और इनका मैं नॉर्म का स्क्वायर निकालता हूं, तो ये विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस नॉर्म ऑफ साई एंड नॉर्म ऑफ फाई. So this can be seen in the form of mod a dot b, what you already know is less than or equal to a mod a square mod b square, right? This was the case. Now if I want to take the sum, अगर मैं sum लेना चाहूँ तो उसके लिए triangle inequality होगी. ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी होगी, तो उसके लिए ट्राइंगल की एक बेसिक थ्योरम है जो आप छोटी क्लासेस में यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आपने पढ़ी होगी, कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल. सो वी कैन इजीली राइट साई प्लस फाई, ये मेरी थर्ड साइड हो गई ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग द वेक्टर लॉ. This is the length of the third side, this is the length of one side, this is the length of the other side. Okay, in Euclidean space
You have already read these things. Now, two cats will be called as the orthogonal if psi phi, this scalar product equal to 0, and orthonormal cats will be if psi phi equal to 0 and phi phi equal to 1, psi psi equal to 1 separately, then these cats will be called as, because they ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, दे आर नॉर्मल एज वेल एज ऑर्थोगोनल, जिससे सो दे आर कॉल्ड एज ऑर्थो नॉर्मल. ओके, नंबर अदर थिंग, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई अ कैट with a cat, another cat. No, you cannot do it. If psi and phi belong to have a different vector spaces, belong to a spin space, and phi to angular moment, orbital angular moment, then the product psi phi written as represents the tensor product phi. अगर psi phi belong to same vector space, तो मेरे जो दो, अगर ये सेम वेक्टर स्पेस के पार्ट हैं, तो मैं दो वेक्टर का, दो कैट या दो ब्रा को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वो मेरी फॉरबिडन स्टेट्स होंगी. बट अगर वो अलग अलग वेक्टर स्पेस का पार्ट है, जैसे साई मेरे स्पिन स्पेस का पार्ट है और फाई मेरा एंगुलर मोमेंटम का पार्ट है, तो मैं उनका ये निकाल सकता हूं. तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो टेंसर में होगी और वो टेंसर अलजेब्रा से ट्रीट होगी. ठीक, आगे चलते हैं. अब जब आप छोटे क्लास में थे तो आपको ऑपरेटर्स सिखाए गए थे. ऑपरेटर्स थे बेसिकली प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जिनसे आपने सीखा कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं. तो इनको कहा जाता है एल्जेब्रिक ऑपरेटर. तो जब आपको प्लस साइन दिया गया तो आपको बताया गया, आपकी मेमोरी में डाला गया, जैसे ही आप प्लस साइन देखेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 करके काउंट करेंगे और आप उसका रिजल्ट लिखेंगे. माइनस साइन जब आपको माइनस करना सिखाया गया शुरू में, तो आप सिंपली काटते थे, उसके बाद में 7 लिख देते थे. धीरे धीरे आपकी मेमोरी में ये चीज़ इंट्रेंड हो गई कि प्लस का मतलब टू ऐड ऑन थिंग्स एंड माइनस का मतलब टू सब्सट्रैक्ट थिंग्स होता है. तो इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में भी, क्वांटम मैकेनिक्स की खासियत है कि इफ़ यू नो साई द वेव फंक्शन, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट सिस्टम. आप उस सिस्टम के बारे में सब कुछ जानते हैं. अगर आपको साई पता है तो सब कुछ पता है. तो अगर साई मुझे जानकारी है तो मैं डिफरेंट ऑपरेटर्स निकाल, डिफरेंट चीज ऑपरेटर्स लगा के साई के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटीज मैं निकाल सकता हूँ. मोमेंटम निकाल सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, कोई भी पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, पोजीशन निकाल सकता हूँ, जो भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से. तो ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली वो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं या मैथमेटिकल रूल्स हैं जो मेरे एक कैट को दूसरे कैट में तब्दील कर देंगे या एक ब्रा को दूसरे ब्रा में तब्दील कर देंगे. तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो आइडेंटिटी या यूनिटरी ऑपरेटर है. उसकी खासियत होगी कि वो कैट या ब्रा जो जिस पे भी काम करेगा उसको अनचेंज छोड़ देगा, उसको वो चेंज नहीं करेगा. दूसरा ऑपरेटर होगा पैरिटी ऑपरेटर. पैरिटी ऑपरेटर क्या करेगा? उसका एक मिरर की तरीके से काम करेगा. अगर आपका आर पॉजिटिव वैल्यू है, अगर पैरिटी ऑपरेटर काम करेंगे तो आर की जगह माइनस आर रख जाएगा, नथिंग एल्स विल चेंज. कुछ भी और चेंज नहीं होगा. आर की जगह माइनस आर रखिए, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी वेव फंक्शन में, केवल आर की जगह माइनस आर रख जाएगा. दिस विल बी माई पैरिटी ऑपरेटर. अगर ग्रेडियंट ऑपरेटर होगा तो ग्रेडियंट जैसा आप जानते हो डेल ओवर डेल एक्स, अगर कार्टेशियन सिस्टम में बात करता हूँ, डेल ओवर डेल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डेल ओवर डेल वाई जे यूनिट वेक्टर डेल ओवर डेल जेड के यूनिट वेक्टर विद अप साइन. ये यूज होगा आपका मोमेंटम ऑपरेटर में. तो मोमेंटम में लिख सकता हूँ माइनस एच क्रॉस ग्रेडियंट, क्योंकि अगर आप ग्रेडियंट निकालना जानते हैं तो आप मोमेंटम निकाल सकते हैं. और फिर चीज़ है लैप्लासियन. लैप्लासियन तो आपको पता है डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर. अगर लैप्लासियन आपको पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर. तो डेल स्क्वायर अगर आपको पता है, डेल स्क्वायर ऑपरेटर अगर आप ऑपरेट करना जानते हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. तो ऑपरेटर्स की खासियत क्या होती हैं?
तो ऑपरेटर्स डिपेंड करता है कि आप किस सीक्वेंस में उसे ऑपरेट कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ऑपरेटर्स कम्यूट करें। कुछ ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं करते हैं। तो इन जनरल हम मान के चलेंगे कि ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं करते हैं। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा ऑपरेटर्स का वो एसोसिएट होगा। ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, यानी अगर बी सी के प्रोडक्ट का अगर आप एक साथ लगा दीजिए उसके बाद ए लगाइए, या पहले सी लगा दीजिए उसके बाद ए बी के प्रोडक्ट ऑपरेटर लगाइए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद ऑपरेटर हर समय, जैसे मेरे फंक्शन के ऊपर मैं काम कर रहा हूं ए बी सी डी साई, इस स्टेट के ऊपर 4 ऑपरेटर लग रहे हैं ए बी सी डी साई। तो सबसे पहले डी काम करेगा वेव फंक्शन पे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर सी काम करेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर बी काम करेगा, उसके ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर ए काम करेगा। तो ये एक तरीके से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट काम करेंगे। जो वेव फंक्शन के जो कैट के सबसे नजदीक ऑपरेटर होगा वो सबसे पहले काम करेगा, फिर उसके बाद वाला काम करेगा, फिर उसके बाद वाला काम करेगा, फिर उसके बाद वाला काम करेगा। अब अगर मैं ऑपरेटर की सैंडविच बना देता हूं एक ब्रा और कैट के बीच में, फाई ए साई, तो ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये मेरा प्योरली रियल भी हो सकता है, प्योरली इमेजिनरी हो सकता है, पर जनरली ये कहा जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो लीनियर ऑपरेटर वो होंगे जो कांस्टेंट्स के साथ में कम्यूट करेंगे, लीनियर ऑपरेटर, बिकॉज जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स में मैं ऑपरेटर्स डील करूंगा उस सारे के सारे लीनियर होंगे कैरेक्टर्स में, मोस्टली। सारे के सारे ऑपरेटर्स मेरे लीनियर होंगे। तो लीनियर ऑपरेटर्स की खासियत ये होगी दे विल कम्यूट विद कांस्टेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल A1 psi 1, तो आई कैन इजी राइट एज A1 को मैं बाहर लिख सकता हूं A1 psi 1, इट इज कम्यूटिंग विथ अ कांस्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर एडिशन। सो सपोज करो इस ब्रा पे ये कोई ऑपरेटर लग रहा है, तो ये कम्यूट करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर, अगर किसी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है किसी ऑपरेटर की, अगर आपसे कहा जाता है, अगर आपको वेव फंक्शन पता है सपोज करिए और आपको किसी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो उसकी हम सैंडविच बना देंगे। वेव फंक्शन के बीच में उसकी एक सैंडविच बना दीजिए, बीच में ऑपरेटर रख दीजिए और ये हमें चीज निकालनी है। तो इसको क्या करेंगे, यहां पे साई जैसा का तैसा रहेगा, साई स्टार ए साई डी क्यू बार, आपको एक तरीके से ये निकालना है। ए ऑपरेटर जो भी है वो आप रख दीजिए, उसको साई पे ऑपरेट करिए और अपना रिजल्ट निकाल लीजिए। दिस इज एज सिंपल एज इट गेट्स। तो क्वांटिटी फाई साई ये डायरेक्ट नोटेशन में एक लीनियर ऑपरेटर होगा, और ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर का एक तरीके से ये इसको कहेंगे हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ये किसी भी कैट पे काम करेगा तो उस कैट का दूसरे जैसे फाई साई, साई प्राइम, अब ये जो है इस कैट के ऊपर इस कैट का प्रोजेक्शन निकालेगा, तो हमारा आएगा साई साई प्राइम फाई। तो ये तो मेरा बेसिस वेक्टर हो गया और ये मेरा कंपोनेंट हो गया। तो ये कहलाएगा मेरा प्रोजेक्शन ऑपरेटर। सो
in next class we will discuss our Hermitian operators, because most of the operators are Hermitian. What are Hermitian and skew Hermitian operator? We'll discuss the commutator algebra and try to solve Schrodinger equation for basic cases. Thank you very much.